नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हेल्थ बायोपेटेक्ट की डिजिटल इश्यूज पे 15 जून 2024 को जो मीटिंग हुई थी, जिसमें कि पीएलआई और मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के बारे में डिस्कस होना था। उस मीटिंग के आउटकम अब सामने आ गए हैं। उसके लिए जो ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन है, उसने अपना सर्कुलर जारी किया है। उस सर्कुलर माध्यम से हम आपको बताएंगे कि उस मीटिंग के आउटकम क्या रहे हैं। आइए सर्कुलर पर नज़र डालें। ये सर्कुलर नंबर है 16/8/2024, 15/6/2024 का ही है। कैंप ऑफिस बॉम्बे, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का ये सर्कुलर है। टू ऑल स्टेट कमिटीज एंड एफिलिएट यूनिट्स को एड्रेस किया गया है। कॉमरेड, gist of the discussion held by IBA today. IBA had two rounds of discussion, one on 18th April and other on 13th May 2024, on three issues with review of ex gratia to retirees as mentioned in the ninth joint note inked on 8th March 2024. Profit Link Incentive Scheme and Improvement in Hospitalization Scheme for Serving Employees and Retirees. इन इशू पर पहले जितनी ये दो मीटिंग का रेफरेंस दे रहे हैं, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई थी और उन वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोई नेट रिजल्ट सामने नहीं आया था। तो ये वाली मीटिंग फिर बॉम्बे में फिजिकल प्रेजेंस के हिसाब से बुलाई गई थी। The original proposal mooted in the last phase revision, that is performance linked incentive by IBA, was subsequently converted to profit linked incentive by the collective efforts. The basis was operating profit. In the ninth note inked on 8th March 2024, it was made clear that provisions in the previous joint note, which have not been amended, modified, or superseded by the joint note, shall continue to remain force. In effect, for the financial year ended 31st March 2024, the profit link incentive should be based on the only factor operating profit. In spite of the fact that the bank have booked operating profit, the matrix fixed in the last phase revision was not facilitating maximum benefit to maximum workforce as per observation made by the team IBA. It has been proposed to lay down 8 parameters, that is CASA, NPA, SMA, net interest income, total business profitability, ROA, ROE and government schemes. तो दोस्तों, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला फैक्टर था, उसी पर अभी तक परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव दिया जा रहा था और पिछले साल का भी इसी आधार पर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक पीएलआई किसी भी बैंक ने रिलीज नहीं किया, वो इस मीटिंग के इंतजार कर रहे थे। तो अब ऐसा लगता है कि अब जो पिछला जो एग्रीमेंट था, उसी के बेसिस पे पीएलआई रिलीज किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024 को, जो खत्म हुआ है। आउट ऑफ द अबव पैरामीटर्स मेंशन्ड, द इंडिविजुअल बैंक में चूज 5 पैरामीटर्स आफ्टर म्यूचुअल discussion with the unions and fix the matrix also. Depending upon the cumulative course secured, the incentive will be from 5 days to 15 days payable at the end of the financial year. तो जो इंसेंटिव का पीरियड है वो 5 से 15 दिन ही रहेगा, लेकिन इसमें 8 पैरामीटर शामिल किए गए हैं। उन 8 में से इंडिविजुअल बैंक 5 पैरामीटर शामिल कर सकते हैं यूनियन के साथ डिस्कशन करने के बाद। ये इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है। Thus, profit link incentive introduced in the last phase division at the industry level is in the process of being converted to performance link incentive to be decided at bank level. IBA is expected to issue the advisory to the bank on the above lines. If implemented, it will lead to a situation of deviating from the policy of uniform wages and service condition
for banking industry who are party to IPA settlement. It may lead to further bank-wise understanding and settlement. एक तरफ से ये एक पॉजिटिव फैक्टर है कि जिसमें IBA से थोड़ा सा हट करके इस तरह इंडिविजुअल बैंक लेवल पर ही अंडरस्टैंडिंग और सेटलमेंट होने शुरू हो जाएंगे और हो सकता है कि धीरे धीरे और एरिया में भी ये डिस्कशन देने शुरू कर देंगे। सेवंथ पॉइंट में इन्होंने 7th पैराग्राफ में इंश्योरेंस बैक्ड हॉस्पिटलाइजेशन स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया। द प्रपोजल आर्टिकुलेटेड इन द डिस्कशन वर specifically centering around reduction of premium and increase in the benefit. Suggestions made were with composite policy for serving and retired workforce, coverage as available in SBI involving SBI insurance in the process of participating in the expression of interest, exemption of GST, constitution of committee as per agreement of 25th May 2015 at the bank level to settle the dispute, harassment of TPAs for production, original bill for processing this claim, extra. Further development, if any, will be informed in due. Yours, comradely, S. नागराजन। दोस्तों इस के जो 7th पैरा में लिखा है कि कंपोजिट पॉलिसी फॉर वर्कमैन एंड रिटायरीज कंसिडर की जाएगी, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है जिसको कि ये माना जा सकता है कि बैंक वाइज प्रीमियम जो डिसाइड होगा, जैसे कि वर्किंग एम्प्लॉयज के लिए प्रीमियम स्टाफ को नहीं बेयर करना पड़ता, उसी ढंग से रिटायरीज के लिए भी उसमें प्रोविजन किया जा सकता है। जहाँ तक बात है कि SBI लाइफ को उन्होंने SBI इंश्योरेंस कंपनी के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो SBI में जो जनरल इंश्योरेंस द्वारा मेडिकल की पॉलिसी दी गई है उसमें काफ़ी हद तक सब्सिडाइज किया गया है, इसलिए SBI के पेंशनर्स को कम प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो इसमें यह देखना होगा कि क्या IBA इसी लाइन में प्रीमियम को सब्सिडाइज करने के लिए और बैंकों को भी कहेगा। अगर ये हो जाता है तो फिर पेंशनर्स के ऊपर जो प्रीमियम का बर्डन है वो कम किया जा सकता है, क्योंकि उसमें सब्सिडी कंपोनेंट बैंक द्वारा दिया जाएगा और पॉलिसी में सुधार किया जा सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो की इस मीटिंग के जो आउटकम है उससे बैंक कर्मचारियों को और रिटायरीज को फ़ायदा होगा। खास तौर पर यदि कंपोजिट ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है वर्किंग एम्प्लॉयज़ एज वेल एज रिटायर्ड वर्कफोर्स के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट मानी जा सकती है। आगे इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी ये देखना होगा, लेकिन ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट लग रही है इसमें। बाकी जो IBA की तरफ से डायरेक्शंस दी जाएंगी उस पर निर्भर करेगा कि किस तरह से ये फाइनल आउटकम सामने आता है। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से सबको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और अगर कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। पेंशन लिटरेसी से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, बैंक की स्कीम्स के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।